Okay, last class what we did a couple of introduction is getting recorded, right? Yeah, so we just did what you call introduction part, and going back again we learned about three trigonometric ratios, and the three trigonometric ratios are best remembered by the rhyme SOHCAHTOA. ठीक है ना? मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। तो रिकैप कर लेते हैं। थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे याद करते थे? सो का और टोआ। आई होप यू नो। S stands for sine, O stands for opposite, A stands for hypotenuse. ठीक है? किसी भी right angle triangle में, if you have any right angle triangle, the side that is opposite to the 90 degree is always known as the hypotenuse, and the angle which is your angle, your concerned angle, जैसे ये आपका concerned angle है, तो थीटा का opposite हमेशा होता है क्या? या तो आप इसे perpendicular बोल सकते हैं या फिर आप opposite बोल सकते हैं। तो रह गया एक ही बचा हुआ, ये बेस बनेगा और ये साइड क्या बनेगा? ये बनेगा adjacent हमारा। Sin, cos, tan are the three primary ratios that we will be looking on, and their reciprocals are cosec, sec, and cot. ठीक है? इतना हमने देखा था। After that, we also saw that some things from grade 11 physics, that 3, 4, 5 is a very small or the smallest Pythagorean triplet with which you can have a right angle triangle. Motion के chapter में 11 में बहुत sums इसी के configuration से आएंगे। और 3, 4, 5 में हमारे एंगल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो सबसे बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। 3 के ऑपोजिट वाला कितना होता है? 37 डिग्री, और ये होता है 53 डिग्री। इसको याद रखिएगा, ये हमें हेल्प करता है। ठीक है ना? 37 this and this, because they will say an angle of 37 and you will not be able to say what is cos 37, but cos 37, if you make 3, 4, 5 triangle, you will be able to decode what is cos 37. After that, we also saw some interesting things where we were ending our class on that day. We said that let's take the same two triangles, okay, and see it from two different orientation. Let's say I name it as ABC, और इसको भी मैं ABC नेम करता हूँ। सेम ट्राइंगल है। एक बार मैं थीटा को देखता हूँ, ठीक है, ये थीटा है, तो दूसरे साइड में मैं अल्फा को देख रहा हूँ, ये अल्फा है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ that अल्फा should be nothing but 90 minus theta. Have you understood this part or not? Alpha should be 90 minus theta, right? Because if this is 90, the sum of the other two have to be 90. So we can always say that alpha and theta constitute what is called as a complementary angles. इतना समझ में आया बच्चा? Complementary angles. हालांकि जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, that may not be so what do you call important for grade 10, but as you go for bridging classes after grade 10, this will be very, very interesting and very helpful for you. In complementary angles, let us now look at, let's name this as triangle T1 और इसको T2 करके रखते हैं, though the naming is same. So here we will see the ratio of sine, say sine of theta. Sine theta is what? Opposite side. क्या हो गया बेटा? AB upon AC. And here we will see cos of alpha. This is alpha. Cos alpha देखो तो क्या हो जाता है? Adjacent by hypotenuse, which is again AB by AC. ठीक है? और ये दोनों इक्वल हो रहा है। मजेदार चीज है, देखिए, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। नेक्स्ट आई सी कॉस ऑफ अल्फा। बोलिए कॉस अल्फा क्या होगा? चलो चलो पार्टिसिपेट करो, सो रहे हो तुम लोग सुबह सुबह। बीसी बाई ए सी, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ अल्फा? नहीं, कॉस नहीं होगा, हाँ जानबूझ के किया ये। यहाँ पे होगा साइन ऑफ अल्फा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा एडजस्ट ऑपोजिट साइड बीसी बाई ए सी, ये भी इक्वल हो रहा है। ठीक है, और आइए अब यहाँ पे देखते हैं tan ऑफ थीटा। tan थीटा बोलो तो क्या है? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, AB बाय AC। यहां हमने कहानी रोका था, और यहाँ पे आप कॉट लीजिए, कॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, AB बाय BC, सॉरी AB बाय BC, और यहाँ पे मैं कॉट ले रहा हूं। कॉट करने के लिए इजी है, कॉट ऑफ अल्फा। आप सब tan अल्फा बोलिए। व्हाट इज tan अल्फा? BC by AB. So cot should be just reciprocal of that, AB by BC. तो यहां से some interesting things you get to know, and we will use this in our trigonometric values also, that if the angles are complementary for, so this is what you should write and keep it, whether it's in your syllabus or not. For complementary angles, right? So I would write, what are my complementary angles? Theta and
90 माइनस थीटा। मैं और एक अल्फा को नहीं घुसा रहा हूं, थीटा है 90 माइनस थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री। आराम से बैठो भाई, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। बाजू वाला सीट एयरक्राफ्ट में खाली है तो आप फैल सकते हैं ना। अभी वो वाला लाइट नहीं जलाए हो, मैं ठीक बोल रहा हूँ। बेसिन के ऊपर एक स्विच है। हाँ अब चिराग दीप इंटरनेशनल, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। उसी तरह cos theta is also equal to sin of 90 minus theta. ठीक है, that means if somebody tells you, और आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप इसे फिजिक्स वाले ट्रायंगल में टेस्ट कर सकते हो। देखो तो 3 4 5, what is this angle 37, what is this angle 90, what is this angle 53। आप, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद ही सोचो। sin 53 कितना हो जाएगा 4/5, cos ऑफ 37 कितना हो जाएगा 4/5। तो अगर sin 53 जानते हैं तो आप cos 37 भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे sin और cos का ऐसा रहता है, tan हमेशा इंटरचेंज करेगा cot के साथ। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा एंड cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। One thing which should go down your throat right from now, आज का भी तो कैमरा ऑफ है। One thing that should go down through your throat right from now, और ये बार बार नहीं, एक बार कैमरा ऑन हो गया ना, छोड़ दो। The computer is just a window to see my beautiful face. Don't disturb it again. अरे थॉट में ही तो गड़बड़ है ना, ये थॉट में दुनिया। सर मैं सोचा था, मत सोचो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चीज आपने दिमाग में घुसा लीजिए अभी से, क्योंकि आपको 11 में जरूरत होगा इसका। अगर साइन फंक्शन ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलता है कभी भी, साइन हमेशा किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। और कॉस अगर बदलना है तो हमेशा साइन में बदलेगा। आगे चल के बहुत सारे प्लस माइनस रूल्स भी आएंगे, बट फॉर नाउ यू आर छोटा बच्चा, यू जस्ट रिमेंबर साइन अगर अपना रूप बदल लिया तो क्या रूप बदलेगा, कॉस। और कॉस अगर अपना रूप बदलेगा तो किसमें, साइन। टैन हमेशा कॉट में बदलेगा, कॉट हमेशा टैन में। तो साइन का जो बीवी है कोसेक, वो रूप बदलेगा तो सेक में बदलेगा, और सेक हमेशा कोसेक में बदलेगा ऑटोमेटिकली। साइन अगर कॉस में बदलता है तो कोसेक भी तो सेक में ही बदलेगा। ये याद रखिए, अ साइन फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स टू कॉस एंड अ कॉस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दिखाते हैं आपको, लेट मी शो यू दैट कितना कितना हलवा सा चीज आप पढ़ रहे हो अभी एट ग्रेड 10। एट ग्रेड 10 इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अगेन नॉट देयर, ये सब बाद में नहीं पढ़ाऊंगा, नॉट देयर इन ग्रेड 10, पर समझ के रखिए। ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में हम, हमारे एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को, एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे, बनाओ मत, सीखो, ये आपके कोर्स में नहीं है। एंगल कुछ ऐसे बनता है, देखो ये जो लाइन है ना, ये एंगल होता है हमारा। एंगल्स ऑलवेज आर मेड लाइक दिस, दिस आर द पॉजिटिव एंगल्स। अगर मैं ऐसा कर दिया ना, दिस इज अ नेगेटिव थीटा, दिस इज अ पॉजिटिव थीटा। नाउ इन ग्रेड 10 यू आर अ वेरी चुन्नू मुन्नू छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा। आपका सिर्फ यहां से यहां तक ही दौड़ है, सिर्फ यहां तक आप दौड़ते हैं। मतलब कहां से, यहां से यहां तक दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां से यहां तक दौड़ना मतलब, आप शायद समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। ये 0 डिग्री है, आप सिर्फ 90 तक की दौड़ दौड़ते हो। जब आप ग्रेड 11 में जाओगे, आप इसको क्रॉस करके आओगे और आप 180 पे आओगे, आप 270 पे आओगे, और फिर एक चक्कर कंप्लीट करोगे 360 में। These demons are waiting for you in grade 11. Grade 10 we are only on 0 to 90, और हमारी पूरी गेम 0 से 90 के बीच में ही होगा। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ यहां से यहां के बीच में पढ़ेंगे। Is this clear to you? और यहां से यहां तक there is a table, as I told you, कि कुछ वैल्यूज हमें मेमोराइज करना पड़ता है। यहां से यहां तक हमें जो टेबल्स देखने पड़ते हैं, वो टेबल होता है 0 डिग्री का, 0 के बाद एक आता है 30 डिग्री का, 30 के बाद एक आएगा 45, 45 के बाद आएगा 60, और 90 हमें देखना पड़ता है। बट बाय नाउ आई थिंक इफ यू हैव ग्रे मैटर इन योर हेड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड 30 और 60 को जोड़ने से 90 होता है, 90 होता है। 45 को डबल करने से भी 90 होता है, और 0 और 90 को जोड़ने से भी 90 होता है। यानी कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें दिखता है। अगर हम 30 जानते हैं तो हम 60 सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम 0 जानते हैं तो हम 90
निकाल सकते हैं। अगर हम 45 जानते हैं तो दूसरा 45 भी निकाल सकते हैं। इज दिस स्टोरी नाउ गेटिंग क्लियर? धीरे धीरे पूरा डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, वॉर रूम जैसा है, सब पिन लगा लगा के चले। अभी अब हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कुछ एंगल मेजर्स को, एंगल मेजर्स, और ये आपको बाय हार्ट रहना है। और ये मेजर्स किस किस के होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। 0 और 90 लास्ट एंड फर्स्ट है, तो इनको हम थोड़ा बाद में डील करेंगे। हम शुरू करेंगे हमारी कहानी 60 डिग्री से शुरू करेंगे। वैसे आपको याद रहना चाहिए, लेकिन पहले पहले हो, कैसे याद रखते हैं आइए उसको भी सीखते हैं। रेडी? चलो, 60 डिग्री की कहानी अगर आपको सीखनी है तो आपको सबसे पहले जानना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। भाई साहब, ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका ये साइड ए है और ये साइड ए है, और जाहिर सी बात है ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? अच्छा, इफ आई स्पीक इन हिंदी आई होप इट्स अंडरस्टूड बाय ऑल। आई Hindi is okay, right? Sometimes I get too carried away, you know. So 60, 60, 60. I did not write the other 60 and I did not write the other 8. However, please remember in triangles that in an equilateral triangle or in an isosceles triangle, the perpendicular that you drop from here performs 3 roles. It's a perpendicular, it's a angle bisector also, and it's also a perpendicular, it's a median also, means it bisects the other two sides. तो एक लाइन से 3 काम करेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ का परपेंडिकुलर। समझ में आ गया बच्चा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये हो गया a/2, ये हो गया 30 डिग्री और ये भाई साहब हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और ट्राइंगल हमारा क्या था? अबसमा। अबसमा हमारा ट्राइंगल है, ठीक। और यहां प्रॉब्लम क्या है? ये एएम का प्रॉब्लम है। तो आइए एएम को देख लेते हैं, दादाजी को याद करते हैं। दादाजी हमारे पाइथागोरस जी थे, वो कहते थे कि ये होता है a² माइनस a/2 होल स्क्वायर। ये समझ में आया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे, अभी बच्चे नहीं हो तुम लोग, ये 4 हो गया, 4 यहां पे जाएगा, 4a² माइनस a² हो जाएगा 3a²। ये समझ में आएगी नहीं? a²/4 होगा, 4 एलसीएम 4 हो गया, तो ये 4a², 4a² माइनस a², 3a²। जानबूझ के स्टेप नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं आ रहा है, लज्जा की कोई बात नहीं, there's nothing to be ashamed of. No, please ask once again. I do not understand that. Have you understood how it is a²? तो इसको अगर हम रूट करेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा? ये √3 तो वैसे ही रहेगा, है ना? a/2 √3 हो जाएगा। देखो तो 4 का रूट है 2, a² का रूट है a और 3। सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? हम बोलेंगे भूतनी को मेजरमेंट है, इसमें कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसकी मेजरमेंट कितनी हो गई? a/2 √3 बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब आप सिर्फ ये ट्राइंगल को देखो। कौन सा ट्राइंगल को देखो? अब आप सिर्फ देखो, आपकी नजर होनी चाहिए ट्राइंगल ABM के ऊपर, और किसी चीज के ऊपर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ABM समझ गए? आइए हम किससे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे प्यारे से नन्हे से बच्चे से, जिसका नाम है sin 30। आ जाओ, sin 30 लिखो तो। sin 30 कितना होता है? ऑपोजिट साइड a/2 डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई a बोले तो बच्चे की तरह a/1, मतलब a/2 इंटू 1/a। तो ये a और a कट गया, तो यहां से सृष्टि हो गया पहला वैल्यू आपका। sin 30 जो है आधा होता है हमेशा हाफ। cos 60 भी हाफ होगा। देखो इसका दिमाग पहले दौड़ रहा है। किसी तरह सर को बुलडोज करके डिटेल कर दो और गलती ढूंढ दो और फिर वीडियो रोक दो, ठीक है ना। sin 30 हो गया हाफ। समझ में आया? मजा आया आपको? ठीक है। हालांकि ये चीज मैं पिछले क्लासेस में बताता नहीं था, बाद में बताता था, आपको तो अभी पहले ही बता दिया। आइए sin 30 निकाला तो पैरेलली cos 30 भी निकाल लेते हैं। cos 30 क्या हो जाएगा बेटा? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब कितना है? √3 a/2 डिवाइडेड बाई कितना है? a/1, है ना। यानी कि हो गया √3/2 a इंटू 1/a। a ने a को काटा तो भाई साहब आ गया cos 30, जिसकी वैल्यू कितनी है? √3/2।
ये आपका आ गया लाइफ का दूसरा। साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है √3/2। बस अब आप साइन 60 भी जानते हैं और कॉस 60 भी जानते हैं, लेकिन हम हैं बेवकूफ, हम करके करेंगे। आइए, साइन ऑफ 60, साइन 60 क्या हो जाएगा? साइन 60 ऑपोजिट साइड a/2 √3 डिवाइडेड बाय a, यानी कि ये कितना हो गया? √3/2। ये है साइन 60 ऐसा। और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? cos 60 एडजेसेंट साइड a/2 डिवाइडेड बाय a/1, यानी कि a/2 इंटू 1/a, यानी कि हाफ। ये है cos 60। लिख लीजिए, बना लीजिए बढ़िया से, समझ में आ रहा है? एनीथिंग ग्रीक एंड लैटिन सो फार? अद्वैत क्लियर है? आसान आसान चीज है। आइए tan हुआ भी कर लेते हैं। tan 30 कितना हो गया? ऑपोजिट साइड a/2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड a√3/2, है ना? तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? a/2 इंटू 2/a√3, तो 2 कट गया, a कट गया, 1/√3। अच्छा, बहुत सारे फॉरेन बुक्स अगर आप देखोगे ना, तो वो tan 30 की वैल्यू ये नहीं लिखेगा, वो tan 30 की वैल्यू लिखेगा √3/3, मतलब उसको रैशनलाइज करके दिख रहा है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया। नीचे चप्पल पहन के घुसना अलाउड नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं? √3 से दे विल रैशनलाइज इट, सो इट बिकम्स √3/3। हम ऐसे याद रखते हैं। और tan 60 की वैल्यू हमारी हो गई कितनी 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 कितनी? tan 60 इज ऑपोजिट a√3/2 क्लास में है अभी, हाँ, a/2 √3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड a/2, यानी कितना हो गया? a√3/2 इंटू 2/a। a ने को काटा, 2 ने 2 को काटा, तो हमारे पास आ गया tan 60 की वैल्यू कितनी आई बेटा? √3। ये भी लिख लीजिए, ठीक है? tan 30 की वैल्यू आई 1/√3। बहुत कुछ सीख लिया आपने। ये सब एंगल मेजर के जो, हाँ, ये कंठस्थ रहना है बाय हाथ। नहीं, ये सब तो निकल गए जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज करते हाँ हाँ, हो। राइट एंगल ट्रायंगल करोगे तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों? अब तुम सोचो कि तुम अब खुद ही बोलोगे सर हमने बेवकूफी वाला सवाल पूछा। आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, बट गुड आपने पूछा, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल होना ही है। राइट एंगल ट्रायंगल होना है तो आपका एक एंगल 90 होना ही है। और आप किसकी तलाश में निकले हो? 30 की तलाश में निकले हो। 30 पे एक एंगल को अगर 90 करके एक को 30 करोगे तो दूसरा वाला 60 होगा ही। क्या वो एक इक्विलेटरल का आधा नहीं है? बट वेरी नाइस यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। यही चाहता हूं मैं, रट के कुछ मैथ्स नहीं होता है, मैं तो समझिए ये किसी एक इक्विलेटरल का ही तो आधा होगा ना हमेशा, कैसे भी कर लो। अब अंगद सोच रहा है किसी तरह इसको गलत करे, इसको बड़ा करोगे तो किसी बड़ा इक्विलेटरल का आधा होगा, छोटा करोगे तो छोटे का आधा होगा, है ना? समझ में आया? इसका करने का एक और टेक्निक रहता है, यूनिट सर्कल भी देखते हैं। जैसे आप फॉरेन बुक्स में देखेंगे वो लोग यूनिट सर्कल, बट आपके लिए क्यों यूनिट सर्कल नहीं किया जा रहा है? You all, the way in CBSE you all are molded with functions, this is better way to understand. यूनिट सर्कल आप 11 में जाके शौक से देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक 1 रेडियस का एक लिया जाएगा, 1 को यहाँ पे लिया जाएगा, ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1, फिर इसका ये साइड ड्रॉ किया जाएगा, फिर एंगल्स लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। चल, यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ये कि 90 60 30 यही नंबर्स डिग्रीज आप 21 भी कर सकते हो। 21 के वक्त आपको टेबल्स चाहिए। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स मिलते थे। हम लोग जब 9th में थे तो हमें प्रॉब्लम आता था 23 डिग्री लेके भी आएगा, 23 को आप ऐसे नहीं निकाल सकते। दीज आर एंगल्स विच कैन बी फाउंड बाय सिमेट्री मेथड। 23 पे कोई सिमेट्रिक ट्राइंगल नहीं बनेगा, आप समझ रहे हैं? तो 23 को हम कैसे करते हैं? वी टेक इट थ्रू मेजरमेंट। मतलब 23 लेके आप धागे से एक ट्राइंगल बनाइए। यू डू अ ट्राइंगल, आप घर पे जाइए, इसको एक मेजरमेंट ले लीजिए, यू डू इट योरसेल्फ, कुछ एक 5 सेंटीमीटर ले लो, तुम्हारी मर्जी जो भी है। 23 पे प्रोटेक्टर ड्रॉ करो और इसको भी कुछ एक मेजरमेंट ले लो, 10 सेंटीमीटर ले लो, और फिर 23 पे फिर इसको तुम्हें मेजर करना होगा।
कैसे मेजर करोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो या फिर ग्राफिकली मेजर कर लो डिवाइडेड से, और फिर तुम sin 23 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, वही वैल्यू आएगा। इसको लेके लोगों ने एक टेबल बना के रखा है, ऑल द साइन कोसाइन रेशियोज, and if you are in Cambridge and all, you get a scientific calculator to do this calculation, which you should get. That is nuisance about our board. Now CBSE has started to allow calculators in grade 12 accountancy also. ICSE कब से देता है? समझ में आ गया? आइए अगले स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा रिकैप। क्या बेटा कुछ छूट गया क्या? बोलो बोलो बोलो। टैन ले लो, टैन बनाओ ना, खुद बनाओ, टैन की कहानी लिखो। आशका मैडम सब ठीक है यहां तक? हाँ, How to do cos 90? cos 90 यहां से नहीं कर सकते आप, इसलिए तो तुम सुनते नहीं हो ना। ये दो को मैं क्या बोला? हाँ, थोड़ा पार्क करके रखिए इनको बाद में। हाँ, लास्ट ईयर किया था ये, लास्ट ईयर को याद नहीं है। हाँ बोलो बोलो बेटू। Sin and cos basically the reverse of one another. वन अनदर इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा मत बोलिए कि sin 23, अगर sin 20 आप निकाल रहे हो तो sin 20 की वैल्यू cos 70 के बराबर होगी। दोनों Repeat this table. आई डिडंट गेट यू। But if sin 30 is 1/2, then sin 60 is No, 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 no. If sin 30 is 1/2, then cos 60 will be 1/2. So going in reverse. order. yeah, it goes. That's what we wrote. इससे पहले वाले स्क्रीन में तो यही लिखा था ना बेटा, ये लिखा था ना, sin 30 cos 90 minus 30 is 60 ना, यही तो बात हुआ, यही लिखा था। चले आगे। ओके, आइए फटफट थोड़ा सा देख लें। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा 30 डिग्री के और 60 डिग्री में कुछ रिश्ते देखे। क्या रिश्ते देखे? बहुत सारा रिश्ता देखा भाई साहब। क्या देखे जरा बताओ तो। साइन का कितना हो गया? साइन 30 होता है हाफ और cos 30 होता है √3/2। अब हम डायगोनल खेलेंगे। डिंग 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 डिंग। हो गया? क्या देखने की जरूरत नहीं है। और tan में कितना देखा? tan में देखा 1/√3, और इसमें क्या कितना देखा? इसमें हमने देखा √3। अब इन दोनों के बीच में एक और एंगल आता है 45। अब हम 45 देखेंगे, एंड 45 में यू शुड बी डेड श्योर व्हाटएवर वैल्यू यू गेट हियर should be the same value that should be here because 45 is 90। ठीक है, 45 के लिए एक अलग तरह का ट्राइंगल लेते हैं। 45 के लिए हम लेते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, सॉरी, 45 के लिए लेंगे एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मतलब आइए, ये ट्रायंगल में ईवा जो है ए है, ये भी ए है। क्लियर है? ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। एंड देन इसका हम क्या करेंगे? इसमें ये 90 डिग्री है तो इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना बेटा? 90 बन गया। ये एंगल कितना बना? 45। अभी फाइन? और एल्स नहीं, इसको ये बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करेंगे। डोंट बाइसेक्ट इट, ये ऐसे करेंगे, उल्टा हो गया। ये ए है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 45, और ये भी 45। थोड़ा मर्जी, थोड़ा जोन सा पसंद है, पसंद है वो ले लो। ठीक है, हो गया ABC। चले, अब ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया है? √2a²। यानी कि ये हो जाएगा a √2। ये समझ में आया? BC जो है ना, ये होता है √a² प्लस a², दोनों को जोड़े थे 2a², फिर a बाहर और √2 अंदर। समझ में आया भाई साहब? कौन सा 45 लेंगे? बोलिए, किसमें पसंद है? ये सवाल राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? जल्दी राइट वाला लेंगे। तो चलिए राइट वाले को फ्रीज करते हैं। राइट वाले को फ्रीज करने से आइए लिखते हैं sin 45 क्या होता है। sin 45 इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब a डिवाइडेड बाय a बाय कितना? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज।
ए बाई, मुझे गलत हुआ है, हाँ सॉरी, ए बाई रूट टू नहीं, ए रूट टू, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो ये हो गया a इंटू 1 बाई ए रूट टू, ए कट गया तो आ गया हमारा साइन 45 का वैल्यू जो कि होता है 1 अपॉन रूट टू। उसी तरह फॉरेन किताब में आपको मिलेंगे रूट टू बाई टू, ठीक है ना। उसी का कॉस कर लो, कॉस 45 अगर हम देखेंगे तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया इसका, a, this is the adjacent side now, divided by the hypotenuse, that is a root 2, so which is equal to 1 by root 2। और ये प्रमाण कर देता है, क्या प्रमाण करता है सर, जो हमने निकाला था, यानी कि ये निकाले v, और थोड़ा सा क्या करेंगे v, टेक्नोलॉजी है ना तो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे भाई साहब, चटका देंगे इसको, ठीक है। 45 डाल दीजिए आप, 45 कितना है, कितना है, कितना होगा 1 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई tan थीटा इज ऑल्सो sin थीटा बाई cos थीटा। मत भूलिए, यहां आते हैं फिर से फटाक से एक रिकैप में, एक चीज छूट गया था हमारा, घर में आपके पास एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसको मत भूलिएगा, वो मिक्सर ग्राइंडर है tan थीटा इज ऑलवेज sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मत भूलिए। इसको भी यूज कर सकते हैं ना, बार बार कैलकुलेट थोड़ी करना है, यहीं से हो जाता है। आई बात समझ में, इजी है अब तक। तो क्या क्या हो गया, 30, 45, 60 हो गया। अब बचे कौन, इंजन और गार्ड का डब्बा ट्रेन में, बाकी ट्रेन तो रेडी हो गया ना हमारा। सर और पांव देना है अभी, आइए। सर और पांव देने के लिए आपको जो चाहिए वो है आर्टिस्टिक थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विथ 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में पेन्स डाउन, कुछ नहीं लिखेंगे, फर्स्ट अंडरस्टैंड। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप, ये मेरा एक बेसलाइन है ट्राइंगल का, समझ रहे हैं, दिस इज सपोज द बेसलाइन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और हाउ डू वी मेजर एंगल्स बच्चों, वी मेजर एंगल्स विद अ लाइन विच इज, ऐसे मेजर करते हैं ना, ऐसे एंगल्स मेजर करते हैं। तो ये है जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है ना, ये वो फोर्सेप है, समझ में आ रहा है, फोर्सेप। ये कितना है, थीटा डिग्री, ये कितना है, कुछ अल्फा डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे थीटा पे इसको रखा, यही चीज तो घूमते जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, समझ में आया। अगर हम इसको ऐसे थीटा रखेंगे तो इसको हम कहते हैं, हायर इंजीनियरिंग में हम कहते हैं इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब कैसा है, मान लो ये हिमालय पर्वत है और आप एयर इंडिया की फ्लाइट से मॉस्को जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, तो आपको ये कितना लंबा दिखेगा, इतना लंबा दिखेगा। यू वोंट सी द ग्रेडियंट फ्रॉम टॉप, दिस इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। व्हेन वी आर एट टॉप वी कैन, आप हिमालय के ऊपर से हिमालय की हाइट थोड़ी समझ सकते हैं, आपको हिमालय कैसे दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, यस और नो। इफ एन एरो इज केप्ट लाइक दिस, हाउ डू यू सी द एरो फ्रॉम द टॉप, जस्ट अ डॉट, एंड इफ आई टर्न द एरो देन व्हाट डू यू सी, वन क्रॉस, जो कि उसका पुल करने का वो है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, ये उसका प्रोजेक्शन है। तो मान लो ये हमारा ट्राइंगल है ए, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और आर्बिट्ररी कोई एक एंगल थीटा बनाया है यहाँ पे, थीटा। आओ तो बेटा साइन थीटा लिखते हैं, क्या होता है साइन थीटा, कितना हो गया, बीसी बाई ए बी, ठीक है ना। अब मेरा ड्राइंग याद करो, मेरा ड्राइंग क्या है, मेरा ड्राइंग कुछ इस तरह है कि अगर ये एंगल थीटा की जगह, अगर ये एंगल थीटा की जगह 0 बनने की कोशिश करे, थीटा की जगह 0 बनने की कोशिश करे, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ कुछ चीज होने वाला है। नंबर 1 क्या होने वाला है, बी एंड सी विल कोइंसाइड। अब भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं, बी सी कोइंसाइड हो जाएगा, चेक करके जैसे आएगा। और ये फ्लेक्सिबल है, ये सी पीछे जाएगा, ये जैसे जैसे इसको आप स्प्रिंग में लगा लो ना तीनों को, जैसे जैसे आप खींचोगे तो ये पॉइंट ऐसे आएगा ना, छोड़ोगे तो ये पॉइंट पीछे जाएगा। बी सी विल कोइंसाइड। अगर बी एंड सी कोइंसाइड करेगा तो बी सी अपना अस्तित्व खो देगा, बी सी 0 हो जाएगा वैल्यू। ये चीज कैसा है बेटा,
ये फ्लेक्सिबल है, एवरीथिंग इज जॉइंट टू ईच अदर, द मोर यू मूव दिस पॉइंट कम्स दिस साइड, छोड़ोगे तो ये पॉइंट ऐसे जाएगा। क्लियर है? राइट, हैव यू अंडरस्टूड दिस टू? आइए अब साइन 0 लिखने की कोशिश करें। साइन 0 डिग्री करते वक्त हमारा कितना हो जाएगा? वही रहेगा BC बाई AB, लेकिन हमने क्या कहा? BC तो 0 हो जाएगा, 0 बाई AB, और 0 बाई AB का वैल्यू होता है 0, अर्थात साइन 0 0। समझ में आया? अच्छा, cos 90 हाँ cos 90, पहले प्रूफ करेंगे उसको, कितना समझ में आया? अब हम देखते हैं cos थीटा, यहां से निकालने की कोशिश करो। cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा? AC बाई AB। तो cos ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं। cos ऑफ 0 में हमने क्या कहा था? B एंड C विल कोइंसाइड। अगर BC कोइंसाइड करता है तो AB की वैल्यू BC की वैल्यू के AC की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। भाई साहब समझ में आ रहा है? ये अगर इससे कोइंसाइड करेगा देन AB इक्वल्स टू AC, तो ये कितना हो गया? AC बाई AC लिख लें 1। आइए, cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 0, cos 0 1, यानी कि यहां पे थोड़ा सा और मैजिक करेंगे। अभी मैजिक करने का टाइम आ गया है, मैजिक करते हैं। और इसको आ गया सिलेक्शन टूल, हाँ ये इसको थोड़ा सा मैजिक करके घुसा लेते हैं, साइड में ले आता फॉरवर्ड, ठीक है, ज्यादा आ गया, 90 भी तो घुसेगा। चलिए 0 डिग्री पे कितना हो गया? साइन 0 0, cos 0 कितना है अपना? 1। तो tan 0 क्या हो गया? tan इज साइन बाई cos, 0 बटा 1 कितना होता है? 0। अच्छा, यहां एक चीज समझिए, a डिवाइडेड बाई 0 और 0 डिवाइडेड बाई a, 0 divided by a is a rational number because this number is in the format of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. इसकी वैल्यू होती है 0। इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। ये कैलकुलस में खूब आएगा आपको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे अपरिभाषित। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन का हिंदी वर्ड क्या है? परिभाषा। ये अपरिभाषित है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसको हम कहते हैं नाडा, मतलब नॉट डिफाइंड, या फिर इसे इंफिनिटी का रूप दिया गया है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नोन एज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। हाँ बेटू बोलो। हाँ, cos थीटा इज नेवर साइन थीटा। cos थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बटवा। नींद टूटना है आपका, देखिए है ना? ये चीज समझ में आया? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनडिटर्मिनेट, अपरिभाषित, उसे हम कहते हैं ND, नॉट डिफाइंड, और लेट्स यू राइट इट एज इंफिनिटी। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यस डेफिनेटली इज 0। ये लिख सकते हैं, इसको लिखने का आपको राइट है, ये लिख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे अलजेब्रा की बुक्स लेंगे ना, वहां आपको एक प्रॉब्लम देगा, x² - 2² डिवाइडेड बाई x - 2। जैसे आपको बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप क्या करेंगे? x - 2 x + 2 x - 2 x - 2 x - 2 करिए x + 2। अच्छे अलजेब्रा के बुक्स में, फॉरेन बुक्स में लिखा रहेगा x not equal to 2। They will write this. We don't write as in, हमें शॉर्टकट करने की आदत है। ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होता है जब x 2 का रूप धारण नहीं करता है। x ने 2 का रूप धारण कर लिया तो ये 0 नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया, समथिंग बाय 0। नीचे 0 नहीं आ सकता है, नीचे 0 का मैथ्स में डेफिनेशन नहीं है। Therefore, when you get these problems in algebra books in higher grade, you will see x - 2। और यहीं से आता है कैलकुलस का लिमिट। लोग कहते हैं find the value of this function, we say this function is not defined at x equal to 2। इसका x equal to, थोड़ा सा हायर एंड मैथमेटिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, x equal to 2 में इस फंक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर भी बताइए ना, कुछ एक एस्टिमेट दीजिए। नहीं बता सकते यार, इतने आदमी का खाना कितना लगेगा, कुछ तो इंसान है ना, कुछ तो बताइए। कुछ ऐसे फंक्शंस का हम बताते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब 2 पे वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम 2 को 2.00001 कर दे, डोंट यू थिंक द डिनोमिनेटर हैज अ वैल्यू नाउ? यस,
या फिर इसे 1.9999 कर दे, डेविएट हो गए ना टॉपिक से। ये 2 है, यहां पे भी फंक्शन का वैल्यू है, यहां पे भी है, ये तो मैग्नीफाई कर देते हैं इसको, हमने ये पॉइंट्स लिया था, ये मैग्नीफाई कर दिया, मतलब यहां पे भी है, यहां पे भी है। एट सम डेल्टा +2 यू हैव अ वैल्यू, एट सम डेल्टा -2 आल्सो यू हैव अ वैल्यू। तो ऐसे चीजों को जब आप हायर मैथमेटिक्स की किताब खोलेंगे तो आप देखोगे इसका कोई फंक्शन वैल्यू नहीं है और इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, x टेंड्स टू 2, x 2 के आसपास आ रहा है तो वैल्यू है, 2 पे नहीं है। मैं और मेरे सिस्टर जब मारपीट करते थे ना, डोंट हिट मी, मैं भी शायद नहीं हिट नहीं करूंगा, उसके मुंह के सामने ऐसे कर रहा हूं, मारा तो नहीं ना तुम्हें, लेकिन उसे एहसास क्या हो रहा है, मार रहा है, एकदम नाक के पास लेके लगा तो वो मुझे चांटा मारेगी, अब तक लगा नहीं है ना। My mother used to get pissed off on both of us. मैं कहता ये लिमिटिंग स्लैप है, you will feel as if I'm slapping you but I am not touching you, छू तो नहीं रहा हूं ना। इसलिए कहते हैं your limit stops, your arrogancy stops when you reach my limit। अब मैं हाथ उठाऊंगा, तो ये वर्ड वही लिमिट से आता है। तो चलो वापस ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, कहां पे चले थे हम, we were going at, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, cos 0 का वैल्यू हो गया, टेबल हो गया। आइए अब 90 की वैल्यू देखते हैं, 90 पढ़ो मजे से पढ़ो यार, क्या बेकार बेकार पढ़ते हो। 90 ये हमारा बेस एंगल, बेस लाइन, और कहानी वहीं शुरू होता है। कैसा शुरू होता है, सर हमने एक एंगल बनाने की कोशिश की, यहां से ये हमारा एंगल है, ये बन रहा है ऐसे 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 कहीं भी, हमने एक आर्बिट्ररी थीटा पे इस एंगल को बना दिया, ठीक है, आर्बिट्ररी थीटा पे इस एंगल को बना दिया। आइए कुछ नाम ले लेते हैं, नाम कैसा हो जाएगा, एंड जनरली दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ए सर्कल इफ यू एग्री, एक घूमेगा तो सर्कल का ही पार्ट होगा ना, ये भी मोशन में आएगा फिजिक्स में। भैया बड़े बुरे दिन हैं आपके आगे, तो अभी आप इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए अगर आप मैथ्स और फिजिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं। तो दिस इज ए, दिस इज बी, और इसको हम सी में रख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली सी शुड बी हियर, नॉट दिस पॉइंट शुड बी सी, क्योंकि आएगा तो यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। चले, एंड दिस इज सम आर्बिट्ररी एंगल थीटा, तो आ जाओ बेटा साइन थीटा लिख लो, कितना होता है BC बाई AB, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा होगा, अच्छा BC मतलब C को यहाँ पे लिखा है तो डोंट गेट वरीड, तुम चाहते हो तुम C को यही रख लो, कोई बात नहीं, C को यही रख लो। कॉस थीटा कितना हो गया, AC बाई AB, भाई साहब समझ में आया, ठीक है। अब हमारी पहुंच क्या है, when थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, अब देखो मजेदार चीज क्या हो रहा है, यो जो हमारा थीटा है ना, यो 90 पे जा रहा है, यो एस से जा रहा है, यो एस से जा रहा है। अब जब B यहां से यहां तक जाएगा, सीवा खींचते खींचते आ जाएगा, सोचो सी खींचते, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, सी खींचते, जैसे हम यहां से उठाएंगे सी यहां आया, और गया तो सी यहां आया, और गया तो यहां, सी किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा बेटा, ए के साथ कोइंसाइड करेगा, सी एंड ए कोइंसाइड्स, समझ में आया। इसका मतलब AC का अस्तित्व गायब हो गया, जीरो हो जाएगा वो 90 डिग्री पे, ठीक है। AC का अस्तित्व कोइंसाइड हो गया, राइट, एंड जो हमारा AB है, ये दोनों कोइंसाइड करेगा, तो AB की वैल्यू BC के बराबर हो जाएगा, AB सीधा हो जाएगा तो C यहां आ जाएगा ना, जो C एंड A कोइंसाइड मतलब क्या, जो AB है ये C यहां आ गया, तो जो AB है वही BC हो गया, ठीक है। दाग दें अभी, साइन 90 हो गया ना, डाल देते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, BC बाई AB, BC आपने क्या बोला, BC और AB बराबर है, तो ये हो गया AB बाई AB, यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अंगद तब से खुजली हो रहा है जब से मैंने cos 0 को 1, cos 0 1 बोला, तो साइन 90 1 है ना, तो प्रूव हो गया। cos 0 अगर 1 है तो साइन 90 भी 1 है, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ने से 90 होता है। समझ में आया भाई साहब। आइए cos कर लेते हैं, cos ऑफ 90, cos 90 विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB, लेकिन AC तो अपना अस्तित्व खो चुका है, अपॉन AB, तो कितना हो गया
0 हो गया है। ये कोई आपको करने नहीं बोलेगा, दिस यू शुड नो। अगर आप भूल गए कभी वैल्यू भूलोगे तो नहीं, एक ऐसा भी राइम सिखाएंगे, राइम के साथ आप सब सीख जाओगे। तो चले वापस हमारे चार्ट को पूरा कर लेते हैं। आइए डोरा दी एक्सप्लोरर की तरह, और अब हमने करना है यहाँ पे 90, और 90 पे साइन 90 की वैल्यू होती है, अगर ये 0 है तो साइन 90 हो गई 1, कॉस 90 हो गई कितनी 0, और tan क्या है, tan है 1/0, यानी कि यहाँ पे आएगा nd। हमने किया 1d nd। हैव यू अंडरस्टूड? अब पूरा टेबल लिखेंगे सुंदर से। क्या हुआ वेदांत, बोलो। तो कपाल पे रेखाएं दिख रही है इसलिए क्या है, कुछ समझ में नहीं आया बेटो? क्या कंफ्यूज हुआ? दोबारा बनाएंगे ना एक बार, तुम टेंशन मत लो, एक और बनाएंगे, ये किताब भर जाएगा। और ये किताब खत्म होने के बाद ना ये सब किताब मैथ्स में मत लो। मैथ शुड ऑलवेज बी। पीयूषा का बुक देखो, व्हाइट लंबा, ये इसका बुक देखो, व्हाइट लंबा किताब, जितना लंबा, क्योंकि आप पेज पलटोगे ना फिर मिस्टेक आ जाएगा। अंगद का बुक देखो, वो साइज होना चाहिए, व्हाइट एंड लंबा। रूल्ड बुक में लिखने की आदत छोड़ दीजिए। रूल्ड बुक नेक्स्ट तब निकालना जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाए ना, बर्थडे में आई रियली विश यू हैप्पी बर्थडे, सुंदर सा हैंडराइटिंग बनाना चाहते हैं ना, उस दिन रूल्ड बुक ले लेना, क्योंकि नहीं तो हमारे तरह गरीबों की तरह पेंसिल से लिख के फिर रबर से मिटाओगे तो उसको लगेगा सजनी ने फूल तो मारा पर गमले के साथ मारा, और सर फट गया आपका। चलें आगे, आइए टेबल बनाते हैं अभी। टेबल यस सर। साइन 30 छोड़ो, यहाँ ध्यान दो मुझे। और 0, 30, 45, 60, 90. Now children, it is not possible for you every time to draw these equilateral triangle, isosceles triangle, and then मम्मी के रोटी का चिमटा, ऐसे करके बार बार तो याद नहीं कर सकते। So now we basically need a rhyme, ठीक है ना। अब आप देखो कैसे, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको मिले, बहुत सारा राइम मिलेगा। हम ये चार्ट, यही चार्ट आपको बनना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप कुछ मत करो, मैं टाइम दूंगा आपको, आप सिर्फ मजे से देखो इसको। कितने वैल्यूज आए हिसाब करके देखो तो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितने आए 30 वैल्यूज तो कोई इंसान याद नहीं कर सकता है, और आपसे पहले बैचेस ने इसको याद किया है, आपके बाद वाले भी करेंगे, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ट्रिक है, और वो ट्रिक को हम याद करेंगे। वन ऑफ द ट्रिक यू ऑलरेडी नो दैट दे ट्रांसफॉर्म ईच अदर। चलो ध्यान से सोचो, इफ यू नो sin 30 डोंट यू नो cos 60, यू नो। इफ यू नो साइंस एंड cos, you know the tans. If you know the sin, cos and the tans, you know the cosec, secs and the cots. मैं 4 स्लॉट बना रहा हूं, वैसे आपको स्कूल में अलग से भी सिखा सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। मैं जिनको ऐसे कर रहा हूं ना, आपको सिर्फ वो याद करना है। बस हम सिर्फ ये याद करेंगे, मैंने अपने लाइफ में ऐसे ही करके याद किया है, ठीक है। और अब कुछ मत लिखो, पेन नीचे रखो और सुनो, राइम को सुनो कैसे मैं याद करता हूं, मैं कैसे याद करता हूं आपको जो ठीक है। साइन 0 0 cos 0 1, बोलो मेरे साथ, साइन 0 0 cos 0 1, साइन 30 हाफ cos 30 √3/2, हाफ cos 30 √3/2, साइन 0 0 cos 0 1, साइन 30 हाफ cos 30 √3/2, sin 45 1/√2। अब मुंह घुमा लो, sin 0 0 cos 0 1, sin 30 हाफ cos 30 √3/2, sin 45 1/√2। That's it, ठीक है। पेन का कलर बदलते हैं और आ जाते हैं हमारे व्हाइट कलर में। जो sin 0 होगा cos 90 होगा, जो cos 0 होगा, जो यहां पे है, जो यहां पे है, जो यहां पे है, बढ़ गया। साइन बटा कॉस बनता है क्या, tan 0/1, ये कितना बन गया 1/√3, ये कितना बना 1, ये बना √3,
ये बना नाडा, नाडा। कोसेक 1/0 नाडा 2 √2 2/√3 1 सेक 1। अब देखो ये 2/√3 है ना, पतियों का ट्रांसफॉर्मेशन है तो पत्नियों का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। मजा आया? ये अगर एनडी है तो ये एनडी होना ही चाहिए, ये दूसरा 1 है तो ये 1 होना ही चाहिए। तो मैच हो रहा है। ये √2 है तो ये भी √2, ठीक है ना। ये 2/√3 है तो ये हो गया √3/2, ठीक है। सॉरी ये नहीं, सॉरी ये 2 है तो ये 2 है, और ये क्या है 1/0 तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अब कॉट को देखते हैं। कॉट है 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 देखो कॉट ट्रांसफॉर्म्स विद साइन, सॉरी कॉट एंड टैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म, मैंने बोला था ना कॉट एंड टैन ऑलवेज, कॉट 30 is tan 60 है। चले आगे, हाँ 1 मिनट। 45 जो है 1/√2 तो ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया 1, 1/1 is 1, सॉरी नॉट √2 1 √3। अब देखो ये 1/√3 है ना, ये भी √3 होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए, या फिर इसको आप ट्रांसफॉर्म करो। हाँ और ये है नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो 1 नॉट डिफाइंड क्या हो गया 0। वैसे भी इसका वैल्यू क्या है cos 90/sin 90, cos 90 is 0, sin 90 is 1, so 0/1। हाँ बोलो बेटा, कुछ एरर है क्या? ये इसलिए होता है क्योंकि इसको लगता है इससे पहले मैं कर लूं, ये जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम आराम से। जब हम पहले पहले गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, हम कैसे चलाएंगे, मिरर भी देखेंगे, हाँ हाँ, और मिरर भी देखो उधर कोई आ रहा है, हाँ वो आ रहा है। जब हम सीख जाएंगे, ये हाथ खिड़की के बाहर रहेगा, इस हाथ से स्टीरियो में गाना भी बदलेंगे और फिर कोक भी पिएंगे ऐसे। लेकिन पहले हाथ साफ कीजिए, करते करते हो जाएगा आपका। अब आप बनाइए। अब मैं बैठता हूं थोड़ी देर, आई विल टेक अ रेस्ट ऑफ 2 minutes। यू पीपल डोंट सी दिस बोर्ड जानबूझ के, एंड यू ट्राई टू मेक द बोर्ड। चलो बनाओ, बढ़िया से बनाओ। तो पहले क्या करोगे, अंगद फिर से बनाइए। 0 30 45 60 90 साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। और क्या चीज आपको याद है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में बराबर होते हैं और वाइफ्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द हस्बैंड, दैट इज व्हाट वी नो। और एक और चीज, 0/1 इज 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इन 3 चीज के साथ इस टेबल को आप बनाइए। तब तक मैं लेता हूं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। मजा लेना चाहिए। हाँ टाटा आईपीएल का ही है, वैसे ही सोच लो। ये आरसीबी वो तो है, वो नेपोटिज्म वाला टीम, उसको मैं कभी सपोर्ट ही नहीं करता हूं। उस टीम में जब भी कॉन्टेस्ट दिखाता है विराट कोहली का फोटो दिखाता है, क्यों उसका कोई कैप्टन नहीं है क्या? जैसे पूरा आईपीएल में 3 ही लोग खेलते हैं। आई लाइक देम व्हेन दे प्ले फॉर इंडिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। और बाकी रिंकू सिंह ये लोग क्या है, गरीब्स, ये खेलते ही नहीं है। जैसे रोको एंड ऑल, और पूरा खरीदा हुआ है ये मीडिया मैनेजमेंट विराट कोहली का। हर 5 मिनट में वो कैच लेगा तो उसी पे कैमरा, कैच कोई और लिया वो एग्रेशन करता है तो उसी पे कैमरा। लुक एट विराट। आप स्टार स्पोर्ट्स का कवरेज देखिएगा कभी भी लंच पे, वी वर टॉकिंग टू विराट, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड दैट यू हैव एंड लुक एट हिज ट्रेनर्स, विराट ही सब है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने उसका लिया था इस बार। मुझे अभी मैं आई एम नॉट दैट इंडियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप नाउ। आईपीएल में आप बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, हमेशा आईपीएल में सम प्लेयर इज कमिंग आउट। ये लोग कौन सा तीर मारे हैं? और राजस्थान रॉयल्स जैसे टीम को देखो, इस बार हाँ 13 साल का बच्चा खेल रहा है, और इस बार वो कुंभ मेला में भी आरसीबी का जर्सी डुबोया है। हाँ आरसीबी गर्ल्स टीम बोलो, एटलीस्ट दे डिड समथिंग गुड। ये खाली नाम से चलते हैं। पहले जब होता था आईपीएल के बाद क्रिस गेल और विराट कोहली पार्टी और डांस।
दिस इज नॉट द स्टेज एटलीस्ट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोलकाता नाइट राइडर कोई बंगाली होने से कोलकाता नाइट, एटलीस्ट 2 राउंड्स खेलने दो तो फिर पता चलता है किसमें मैच जिताने की काबिलियत है। अभी जो मैचेस आप दिखा रहे हो ना, इट इज लाइक यू पुट मी टू अ न्यू टाउन एंड यू आर आस्किंग मी सर व्हिच समोसास डिड यू लाइक इन दिस टाउन। अभी तो खा रहा हूं सबका एक एक प्लेट, 2 राउंड खा लूं फिर बोलूंगा। Anyone here who is fond of samosa? तो आप एक जोमेटो में एक समोसा ऑर्डर कीजिए, मतलब मैं वो सिर्फ 3:30 के बाद खुलता है। अरे वाह समोसास, अरे वाह ARREY, अरे वाह समोसास। उसका एक पैकेट आता है 10 पैक 10 का पैक आता है। मैं तो ऐसे बैठता हूं तो 5 चला जाता है मेरा आराम से। अरे वाह समोसा इज वेरी टेस्टी, उसमें वो खट्टापना वो सब नहीं लगेगा। जैसे यहाँ तो मैं समोसा खाता ही नहीं हूँ, आई ईट समोसा ओनली व्हेन आई गो टू नॉर्थ, दिल्ली वैली जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समोसा में इतना ज्यादा दैट सारनेस इज देयर, उसके बाद एसिडिटी हो जाता है। हाँ समोसा मुझे मटर वटर वो सब है नहीं तो समोसा अच्छा नहीं लगता है। समोसा अरे वाह समोसा इज लाइक दैट, यू विल गेट दैट अदरक फ्लेवर, आलू वो भी बिन छिलके के साथ, आलू विद अ पील, वेरी टेस्टी। ना लेकिन वो 3:30 से पहले ग्रे आएगा, डज नॉट डिलीवर टू योर लोकेशन। ये आशका के घर के पास हो जाएगा, गच्चीबोली से आता है। और 10 पैक लेने से जोमेटो फ्री डिलीवरी याहू वो भी हो जाता है। मजेदार, लाओ और खाओ। हाथ में रिमोट और एक हाथ में समोसा, सामने फ्रिज का मिक्स किया हुआ पानी, आहा, इसके जैसा आनंद है क्या किसी? चलो चलो टेबल बनाओ। पोएम क्या था? sin 0 0 cos 0 1 sin 30 half cos 30 root 3 by 2 sin 45 1 by root 2। मैं पोएम लिख देता हूं फिर से। sin 0 0 cos 0 1 sin 30 half cos 30 root 3 by 2 sin 45 1 upon root 2। 2 बार करने के बाद याद आ जाता है यार। tan 0 is sin 0 by cos 0, डिफाइंड है। tan 90 नॉट डिफाइंड है। cosec 0 is not, cosec 0 sin का 1 बटा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और cot में 0 में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, cos बाय sin है वो, cot 90 पे 0 हो जाएगा। tan का जो 0 है वो cot का 90 बनेगा, क्योंकि tan और cot में अदला बदली होता है, बताया था आपको। सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो इन सारे एंगल्स में आप कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, 30 60 45 45 0 90, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री में 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। okay sir, मजा आया? फंस गए क्या किसी में? किस में फंसे बोलो? अब tan 30 sin बाई cos। अच्छा तुम ये 3 चीज भी साथ में लिख लो, ये 3 चीज लिख लो। हमें 3 चीज चाहिए ये टेबल निकालने के लिए। ये एक, दूसरा चीज हमें चाहिए साइन बटा cos हमेशा होता है क्या? tan। और तीसरा हमें चाहिए 1/0 होता है नॉडा, ये याद रखिए। और 2.1 भी एक ले लीजिए, रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स मतलब कोसेक हो गया 1/sec, सेक हो गया 1/cos, और कॉट हो गया 1/tan। मजा आया? अद्वैत सो रहा है या तो नींद आ रहा है समोसे की बात सुन के। यहां आपके टेक्स्ट बुक में यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एक्सरसाइज 8.1 whatever it may be, I don't know। 8.3 is an identity, 8.2 is angle measures, जो कि सिलेबस से हट गया है। 8.2 I don't know न्यू बुक में है कि नहीं, जहां आप ऐसे टाइप प्रॉब्लम देखोगे, sin 20 प्लस cos 70 ऐसे करके प्रॉब्लम देखोगे। नहीं, आप अभी वो हटा दिया है न्यू बुक में। ऑल द एक्सरसाइजेस आर वैलिड फॉर यू। सो लास्ट देयर आई एम सॉरी। सो 8.1 के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे लास्ट क्लास में आपको बताया था, आज आपका टारगेट है 8.2 करने का। 8.2 विल बी 8.2 करो। कैसे करोगे? पहले टेबल बना लो,
और टेबल को चिपका लो। कहाँ? मैंने बोला ना, एक वॉशरूम में और एक स्टडी टेबल में। 3-4 दिन इसको देखते देखते याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे, वो भी कॉमन है, फिर याद आएगा, नथिंग टू वरी। नहीं करने से याद, अभी आप किसी को भी पास आउट है जो पढ़ता नहीं है उसका पूछोगे भूल जाएगा वो। तो 8.2 में सारे प्रॉब्लम्स आर ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल मेजर्स एंड हाउ विल यू सॉल्व देम? यू विल सॉल्व देम बाय यूजिंग द टेबल। तो पहले टेबल को देख के याद कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज आएगा, विच इज द मोस्ट क्रूशियल वन एंड हैज बीन एब्सोल्युटली डाइल्यूटेड नाउ, बहुत आसान कर दिया है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थोड़ा सा उसका पिल्लू छोड़ देगा, थोड़ा चखना दे देते हैं उसका। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, फटाफट बता देते हैं। हमारे ग्रेड 10 में हमें सिर्फ 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने पड़ते हैं एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स नाउ कम, ज्यादा टफ नहीं आता है। उसमें से सिर्फ पहला वाला आप याद रखो, तो बाकी दो आपको याद तो रखना है, लेकिन आप जनरेट कर सकते हो। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके लिए, यू जस्ट नीड टू नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में होगा सारा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये दो चीज सीख लीजिए, बहुत अच्छा चीज बच्चे ने बोला। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक और चीज होता है साइन ऑफ थीटा स्क्वायर, ये अलग चीज है। नहीं लिखते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसको हम बोलते हैं पावर, और इसको हम बोलते हैं एंगल, पीएफए, पावर फंक्शन एंगल। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा को दोबारा मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। दूसरा वाला आइडेंटिटी हम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, दूसरे वाले आइडेंटिटी का जो आपका हाउ टू रिमेंबर इन एग्जाम, फर्स्ट आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा? 1। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर ना। इतना मुंह क्या फुला रहे हो? कॉस बाई साइन कितना है? कॉट। कॉस बाई साइन इंटू कॉस बाई साइन कितना हो गया? कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। हाँ, लिटिल बिट ऑफ फेसेस शुड चेंज ना। इतना सब कुछ आसान है तो क्या मैथ्स है? दुश्मन की टेरिटरी पे जा रहे हो भाई। कौन सा? हम ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम ये पढ़ रहे हैं, वो अलग है। इसका मतलब है साइन 30 इंटू साइन 30, इसका मतलब है साइन ऑफ 900। समझ में आया? यू अंडरस्टूड? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, समझ में आया ना? This is beta sine 30 multiplied by another sine 30. So sine square 30. This is sine of 30 square, which is sine of brackets 30 into 30. That's 900. Sir, there is just 360 हाँ, plus 900. और एक बार आ सकते हैं ना 720, और एक बार आ सकते हैं ना। ऐसे तो आप बोलोगे तो हमेशा, इसीलिए सर्कुलर मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं उसमें सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं रहता है। एक व्हील बार बार घुमाते रहो तो वही जगह आ रहा है, उसको लीनियर घुमाओ तो बहुत जगह चला जाता है, वही आएगा आपके एंगुलर मोशन में। रेडी हो जाओ। अच्छा, तीसरा वाला जो हमारा रूल है, अब अभी दिखा रहा हूं, ये है पहले वाले को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया बेटा? tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। बस ये 3 आपको याद रखने हैं ग्रेड 10 में, ठीक है। ये तो पिल्लू छोड़ा आपके लिए, ताकि एंड यू विल से सर द आइडेंटिटीज आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, सो यू शुड आल्सो गेट अ ग्लिम्स। इसलिए ग्लिम्स आज लेके आया हूं, दैट व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। ग्लिम्स देख लो थोड़ा सा। ये 3 ही लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो 3 जब याद नहीं कर पाते हो ना, तो आपके लिए कुछ और भी रहता है, थोड़ा उसको भी देख ही लो भाई। रिमाइंड मी लेटर। क्या चीज आते रहता है, देखो क्या चीज आपके स्टोर में है। ये उस दिन था, मैं देखा नहीं। दिस इज जस्ट फॉर 11 क्लास। इतने कुछ फॉर्मूलाज हमें जरूरत पड़ते हैं,
तो कुछ देख लेते हैं फॉर्मूलाज कैसे हैं। No, remember. दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड राइट नाउ एंड दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड। ये राइट साइड में कुछ दिख रहे हैं आपको, ये भी आपको बाय मेमोरी देना। एंड हाउ कंफ्यूजिंग दे आर। cos a sin a plus b sin a cos b cos a sin b sin a cos b cos a minus sin a cos a 11th these are waiting tan of a plus b, ये just rules देखते रहो। ये कैसे, this is ऐसे 6, this is one page only, huh? So let's go to the next page. Let's go to the next page. Cos 2 theta sin 2 theta tan 2 theta. If you come to my home, in my daughter's room, this is in front of her table, in her washroom, in this, मैं ऐसे ही washroom नहीं बोलता था। ये सब देखो, ये 3 थीटा फॉर्मूलाज है, ये होता है C plus D फॉर्मूलाज। ये स्लाइड 2 है, अभी आगे चलते हैं। C and D is are another 2 angle like sin C plus cos D, अगर कोई एंगल आपको ऐड करने बोले। आगे चलते हैं। These are डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज अलग से, ये भी आपको याद रखने हैं। इसमें इंटीग्रल्स नहीं डाले हैं अभी। This is differentiation of all the trigonometric formula. You just see how this is 1 minus x square minus 1 by 1 minus 1 by 1 plus mod of x into, आप तो ये जानते ही नहीं हो अभी mod x। हाँ, मैं वो तो फिजिक्स, अभी यहाँ जब mod x आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हाइपरबोलिक्स भी आते हैं, ये सीबीएसई में नहीं है, ये स्टेट बोर्ड में है, ठीक है। दिस इज क्वोशिएंट रूल। और आगे चलते हैं, ये भी आपको आएंगे लिमिट्स, जो लिमिट लिख रहा था ना मैं, एलटी लिमिट। अभी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में 40 35 और फॉर्मूलाज आएंगे। ये एक और स्लाइड है इससे, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ। दिस इज नथिंग, सब टेंजेंट टेंजेंट, दिस इज अगेन सीबीएसई में नहीं है, दिस इज देयर इन स्टेट। हाँ, आई थिंक वी डोंट हैव एनीथिंग मोर देन दैट। सो व्हेन यू, ये इसलिए दिखाया कि बेटा आपको जब घर में मम्मी पूछती है ना, आप रात को रोटी खाओगे या पराठा खाओगे, मैं रोटी पराठा नहीं खाऊंगा। रिमेंबर व्हेन यू क्राई फॉर अ शू, देयर इज समवन हु इज विदाउट अ लेग। आने वाले जिंदगी में पेरेंट्स को मैं यही बोलता हूं कि 11th class, the 10th and 9th have been made so simple after COVID. 11th is prisoner of war camp and you are an officer of the army. आपके नाखून निकाल लिए जाएंगे और आपने अभी तक एक चांटा लाइफ में नहीं खाया है। So the more you bleed in war, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. आपके नाखून निकाल लिए जाएंगे। ये तो सिर्फ मैथ्स का एक ग्लिम्स हुआ। उसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर है, फिजिक्स अलग से है। एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां इतने सारे रिएक्शंस आपको 11th में, यू विल नॉट गेट टाइम, इट इज हॉरिबल। पहला 7 महीना आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन चाटा मारा, कहां से आके मार के गया। फर्स्ट 6 months यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट हैपेंड। इसलिए आप सबसे अभी जो बैच पास किया ना, मैं उनको ये सवाल पूछूंगा सितंबर में दशहरे के टाइम, हाउ इज द जोश? यू नो व्हाट दे विल रिप्लाई, सर 10th was nothing, even if we study now we can score। और 10th के बच्चों को दे विल बिहेव लाइक बिग दीदीज, ये कुछ भी नहीं है तेरा टाइम, तुम तो रोगे 10th में, सर याद नहीं आ रहा है सर, केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल हो रहा है, फिजिक्स। वो बोलेगा चुप रहो, तुमको पता ही नहीं आगे कौन खड़ा हुआ है। जैक फ्रूट के ऊपर बैठना होगा, बहुत दर्द होगा, वैसा हाल है आगे। इसलिए मैं कहता हूं आप अपना एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए और अपना टॉलरेंस बढ़ाइए। कैसा? गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मेकिंग इट ऑन टाइम, देन स्टडीइंग मोर देन समथिंग। इफ पेरेंट्स आर सेइंग हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम भी लटक मत जाना हनुमान की तरह, आप जाइए, हम घर पे हैं, आज मुझे काम करना है। रात को जागना, टू बी एबल टू रिमेन मोर अवेक, गेट सम बेसिक लाइफ स्किल। एक बोनविटा बनाना सीखो, घर में माइक्रोवेव सबके पास है, मर नहीं जाओगे। नहीं मम्मा मुझे किचन में आने ही नहीं देती है, तो मम्मा को बोलो मम्मा बाहर जाओ, वो मम्मा तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर रहा है। और जाके कराची बेकरी का वो जो उस्मानिया बिस्किट्स आते हैं ना, लाके रखो, दे वेरी फिलिंग। 2 बिस्किट ले लो और 1 कप बोनविटा ले लो, घर में सब सोए हुए, सोने दो। यू विल वेक व्हेन अदर्स आर स्लीपिंग, यू विल स्लीप व्हेन अदर्स आर वेकिंग अप। आपका टाइम ही अलग है। इसलिए दंगल मूवी देखा है, उसमें लास्ट में कहता है अचार वचार जो खाना है ना आज खा लो, क्योंकि इसके बाद और कोई अचार नहीं है तुम्हारे लाइफ में। You are getting, and whatever it can be, you get into, you think that if you go to commerce it will be easy, if you go to arts it will be, commerce में आपको फाउंडेशन क्लियर करके CS फाउंडेशन में बैठना है, 11 12 तक ही आपके साथ वाले बैठ जाएंगे। तो भाई साहब, days ahead are
वेरी टफ। तो हाँ, डार्क मतलब क्या है? इट्स लाइक यू वुड बी बैटिंग ऑन अ 50 ओवर मैच चेजिंग अ टारगेट ऑफ 340। एवरी बॉल दैट यू लीव इज, वहां पे इक्वेशन आता है, और वहां अगर तुम 5 for 2, 3 in trouble, 5 for 2 हो गया ना, अगला बैट्समैन जब बैट करने आएगा ना, द होल कैमरा विल बी ऑन हिज फेस, और बिग स्क्रीन में उसी का फेस, सब लोग उसी को देख रहे हैं, और हम घर पे पेप्सी पी के, अबे मार नहीं सकता, ये क्यों खेलने आता है यार बेकार में, हम वैसे बोलेंगे उसको, ठीक है। और अगर वो चल गया, अगले दिन पेपर में बन गया, बहुत सारा कंट्री में लोग बैठे हुए हैं खेलने के लिए, नहीं चला, भुवनेश्वर कुमार का नाम जानते हो ना, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अभी वो सब छोड़ो, नेशनल टीम में तो नहीं है ना, चल गया तो चल गया। वरुण चक्रवर्ती एक मैच मिला, 5 विकेट मिल गया, भले ही 2 कैच 3 कैच छोड़ा भी है, चल गया तो चल गया, नहीं चला नहीं चला। दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज व्हेन 2011 वर्ल्ड कप वानखेड़े इंडिया का स्टेडियम में सहवाग डिसमिस्ड एंड तेंदुलकर डिसमिस्ड, दैट इज व्हेन विराट कोहली गोज टू बैट एंड योर ओनली फ्रेंड इज स्टैंडिंग 22 yards ahead of you, जिससे बात भी नहीं कर सकते, सब लोग आपको घेर के बैठा है। Everyone expects India to win, बिग स्क्रीन में आपका फोटो, और कैमरामैन बिल्कुल आपके मुंह पे फोकस लेके बैठा है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता उस वक्त, वो सिर्फ बॉलर दिखता है, हम इजी समझते हैं उसको, वो उतना इजी नहीं है। और यहाँ बैठ के कल नेक्स्ट डे पेपर, खेला क्या वो, उसको मारना चाहिए, उसको यार निकालो उसको टीम के वहां। तो भाई साहब, दिस इज व्हाट इज वेटिंग, ठीक है। So do exercise 8.2, and in next class what we will do is that we will get into our identities, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, और आइडेंटिटीज पार्ट आप रोज करते रहना, और 3 आइडेंटिटी पे कभी रोना नहीं, क्योंकि आगे कितना रुका हुआ है मैंने दिखा दिया आपको, आपके बाकी बच्चों को ये नहीं पता, वो आपको सीक्वल 2 भी दिखा दिया है, ठीक है। First one, if you remember, actually you should remember all 3. If you ever get confused, you just apply this formula. Then you can remember the other 2 also. तो भाई साहब, आज का रंगारंग कार्यक्रम